students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study travel and currency. We already know we have different means of transport. All transport need energy to run. We need to pay to use public transport. We will know what is ticket, token and fare, are currency notes and coins, landscape changes during traveling. During our summer vacations, we decided to spend a few days at our Nani's house who stays in Dehradun. We stay in Faridabad. We hired a cab taxi for her place. We paid in cash to the driver according to the distance travelled by us. One of my aunt was coming from Amritsar. She got the reservation done in advance from Shatabdi Express at the ticket counter. The fare for the train is higher than the other trains, but it is an air-conditioned train and the fare includes the charges for the eatables served during the journey. The ticket collector checked everyone's ticket in the train. Okay, देखिए समर वेकेशन के टाइम पे ये जो स्टोरी बता रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि समर वेकेशंस पे हमने डिसाइड किया कि हम अपनी नानी के घर जाएंगे देहरादून. ओके, वहाँ हम फरीदाबाद में रुकेंगे. हमने एक कैब ली और वहाँ पे बुक की कैब. हम लोगों ने उसे कैश दिया ड्राइवर को और उसने हमारा जितना भी डिस्टेंस था वो ट्रैवल कराया. ठीक है, मेरी एक आंट है जो कि अमृतसर में रहती हैं, वो वहाँ से रिजर्वेशन कराई उन्होंने शताब्दी एक्सप्रेस की. शताब्दी एक्सप्रेस की जो टिकट थी वो थोड़ी महंगी थी. क्यों? क्योंकि वो एयर कंडीशनड है और वहाँ पे ईटेबल्स के लिए भी फेयर लगता है. ओके, तो जो टिकट कलेक्टर थे उन्होंने आके सबकी टिकट्स चेक की. ओके, जर्नी के बीच में. अनदर aunt of mine was coming from Pune. She preferred to travel by an aeroplane as it is the fastest means of transport. She had reserved her air ticket through internet and paid the fare through her debit card. She carried her e-ticket and identity proof for traveling. देखिए उनकी दूसरी आंट जो है वो पुणे से आ रही हैं और वो वहाँ से बाय एयर आ रही हैं, मतलब कि एयरप्लेन से आ रही हैं. ओके, तो एरोप्लेन से वो आ रही हैं तो उन्होंने जो टिकट कराई है वो ऑनलाइन कराई है बुक और उनका जो पेमेंट है वो उन्होंने डेबिट कार्ड से पे किया है. ओके, बोथ माई आंट्स आयर्ड ऑटो रिक्शोज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट टू रीच नानीज हाउस. दोनों आंटीज़ ने एक ने रेलवे स्टेशन से और एक ने एयरपोर्ट से ऑटो रिक्शो किया नानी के घर तक के लिए. ओके, दे पेड द ड्राइवर्स आफ्टर चेकिंग द फेयर मीटर चेक करने के बाद उन्होंने जो ड्राइवर है उनको पेमेंट की. पोस्ट टू नेम एनी टू मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. ये आप खुद से करेंगे. Traveling means moving from one place to another. It can be done for various reasons. To go from the workplace or to the education institute, we meet a relative or a friend or for a exertion. We need means of transport for traveling. The modes of transport we choose depend upon the distance to be traveled at time to our disposal. All means of transport required money to be paid as the fare for traveling. देखिए ट्रैवलिंग का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करना. ओके, ये वेरियस रीज़न से की जा सकती है, जैसे कि वर्क प्लेस पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे जाने के लिए, रिलेटिव्स के यहाँ जाने के लिए. ओके, हमें मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग के लिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. ओके, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उन्हें हमें पे करनी होती है मनी ट्रैवल करने के लिए. ओके, लेट्स नो. व्हीकल्स रन्स ऑन फ्यूल. फ्यूल इज़ एक्सपेंसिव, so prefer walking short distances. You can carpool with your friends or use public transport. It saves fuel and money. देखिए व्हीकल्स जो है वो फ्यूल से चलते हैं और फ्यूल्स जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो आपकी जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं वो आपको वॉक करके कवर करने चाहिए. ओके, मनी फॉर ट्रैवलिंग. Money that we use is available in different forms, coins and currency notes. Coins of our currency are manufactured in the mint. The coins have a national emblem on one side of its denomination and year of issue on the other side. The smallest unit of money in our country is paisa. 1 rupee has 100 paisa. देखिए मनी जो होता है वो कई फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि कॉइन्स और करेंसी नोट्स में.
कॉइन जो होता है वो एक करेंसी होती है जो कि मिंट के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। ओके, नाउ इसके वन साइड पे तो नेशनल एम्बलम होता है और दूसरी साइड पे इसका इशू किया हुआ जिस टाइम जिस ईयर पे ये जो कॉइन है इशू किया हुआ है वो ईयर लिखा हुआ होता है। ओके, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मनी की हमारे इंडिया में वो है पैसा। 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा होता है। ओके, देखिए 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का है, 5 रुपी का है एंड 10 रुपीज़ का कॉइन है। लेट्स नो द न्यू सिंबल रुपीज़ for our currency was designed by Dr. Udaya Kumar in IIT Mumbai. Study of coins is called numismatics. देखिए जो सिंबल है रुपीस का वो डिज़ाइन किया गया था द्वारा बाय डी उदय कुमार। ओके, वो एक IIT थे मुंबई के। ओके, जो स्टडी होती है कॉइन्स की उसे बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, all the currency notes are signed by the governor or of RBI, Reserve Bank of India, in Hindi and English both. On one face of the currency note, the value of the note is printed with a unique code number at the right and corner of the left hand corner. No two notes can have the same number. The latest issue currency note have some slanted black lines embossed ऑन द फेस ऑफ द नोट ऑन बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड। ओके, देखिए हमारी जो करेंसी है, नोट्स की जो करेंसी है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे जो RBI गवर्नर हैं उनके साइन होते हैं। ओके, जितने भी लेटेस्ट इशूड करेंसी नोट्स हैं उन सब पर ब्लैक लाइंस हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आइए। 10 रुपी नोट कैसा दिखता है, 50 रुपीज़ का, 100 का, 20 का एंड 500 का। इन सब में आपको ब्लैक लाइंस दिख जाएंगी। ओके, और जो इन पे नंबर लिखे जाते हैं सबके नंबर अलग होते हैं, कभी भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। ओके, पोस्ट डू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द करेंसीज यूज्ड इन द फॉलोइंग कंट्रीज: फ्रांस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हांगकांग, जापान, इटली, UAE, USA। ये आप खुद से करेंगे। On one of the faces of our currency notes, we have the picture of Mahatma Gandhi, the father of the nation, and the right side of the national emblem on the left side. On the other face, along with the domination of the note, we can see the value of the note written in words in many languages. It is a symbol of national integrity in the diversity. Can you read any of these languages? How many languages are there on the note? Okay, देखिए हमारे जो करेंसी नोट्स होते हैं उन पे राइट साइड पे महात्मा गांधी जी की फ़ोटो होती है, ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन, और दूसरी साइड पे नेशनल एम्बलम होता है। नोट्स पे कई सारी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है, जितने भी रुपीज़ के वो नोट्स होते हैं। ओके, सारी लैंग्वेजेस होती है, ये शो करती है डाइवर्सिटी कितनी है इंडिया में। ओके, नाउ रिवर्स बैंक इज इशूइंग करेंसी नोट्स with Mahatma Gandhi watermark. It is visible when seen in light along with his portrait. There is a security thread also along with the width of the note. It is thin ribbon woven into the note. It prevents counterfeiting of the note. देखिए अगर आप नोट को रोशनी में उठा के देखेंगे तो आपको शो होगा कि प्रिंट हुआ है फेस किसका, महात्मा गांधी जी का। ओके, और आपको एक थिन रिबन जैसी लाइन भी शो होगी उसमें। ओके, लेट्स नो रुपी वॉज द करेंसी ऑफ मैनी कंट्रीज इन अर्ली 20th century. 1 rupee note were issued by फाइनेंस मिनिस्टर विद द सेक्रेटरी सिग्नेचर। देखिए पहले जो रुपी था वो करेंसी हुआ करता था बहुत सारी कंट्रीज़ में 20th सेंचुरी में। ओके, 1 रुपी नोट इशू कराया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ओके, जिसमें सेक्रेटरीज का सिग्नेचर था। लैंडस्केप चेंजिंग ड्यूरिंग ट्रैवलिंग. As we travel, the landscape keep changing from place to place. This is because the earth has a varied landscape. As we travel, we come across different areas of land with different natural features. These natural features are called landforms. देखिए जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आप डिफरेंट लैंडस्केप देखते हैं, और जब क्योंकि जो अर्थ है उस पर डिफरेंट टाइप्स के लैंडस्केप्स अवेलेबल है, तो आप जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव ऑन करते हैं तो आप डिफरेंट टाइप्स के लैंडस्केप्स भी देखते हैं और बहुत सारे नेचुरल फीचर्स भी देखते हैं। इन नेचुरल फीचर्स को लैंडफॉर्म्स बोला जाता है। Some areas have distinct physical features, climate,
soil and vegetation are known as geographic regions. Plains, mountains, plateaus and islands are important landforms. देखिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन सब डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसे हम जियोग्राफिक रीजन बोलते हैं. ओके और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स. ठीक है. Plains, the flat piece of land where many rivers flow through is termed as plain. The rivers deposit silt on their banks and make the land rich and fertile. The northern plains of India are formed by the silt deposit on the rivers Ganga, Yamuna, Satluj, Brahmaputra and their tributaries. देखिए जो फ्लैट पीस ऑफ लैंड होते हैं वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स भी होती हैं जो कि फ़्लो करती हैं. ओके जब रिवर्स फ़्लो करती हैं तो अपने जो उनके जो रिवर के बैंक्स होते हैं, मतलब कि जहाँ पे बैंक्स मतलब कि जो साइड का एरिया होता है जहाँ पे रिवर स्टॉप होती हैं. ओके वो जो बैंक एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारी सिल्ट का मतलब होता है रेत जो है वो छोड़ती हुई चलती है. तो जो रेत होती है उसकी वजह से जो आपकी सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होती है. ओके तो ऐसी कौन कौन सी रिवर्स हैं? गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र हैं. ओके वो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ बहती हैं. नॉर्दर्न माउंटेन्स कवर्ड द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम. अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. राइस एंड व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ दिस रीजन. जूट एंड शुगर केन आर अदर मेजर क्रॉप्स. ओके देखिए नॉर्दर्न माउंटेन्स में काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो कवर होते हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल. ठीक है कुछ पार्ट होते हैं असम के. अब ये जो जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी में फूड क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, ओके जूट, शुगर केन, ये सब मेजर क्रॉप्स हैं यहाँ के. हिल एंड माउंटेन्स. The highest portion of land are known as mountains. Hills are landforms that are higher than land around it but smaller than the mountains. They have cooler climate than that of plains. Okay देखिए जो highest portions होते हैं उन्हें हम mountains कहते हैं और जो hills होते हैं वो landforms होते हैं जो कि mountains से तो छोटे होते हैं लेकिन plain area से बड़े होते हैं. तो जो hilly areas होते हैं वो थोड़े cool होते हैं. Mountains have steep slopes. Some of our very high mountains are covered with snow. Okay. माउंटेन्स जो होते हैं उनके जो स्लोप्स होते हैं वो स्टीप स्लोप्स होते हैं. ओके और कई सारे माउंटेन्स ऐसे हैं जो कि स्नो से कवर्ड भी होते हैं. द पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक. जो सबसे हाईएस्ट टॉप एरिया होता है माउंटेन का उसे हम पीक बोलते हैं. अ रो ऑफ अ चेन ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड अ रेंज. द हिमालयाज फ्रॉम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन range. Himalayas can be divided into Himadri, Greater Himalayas, Himachal, Middle or Lesser Himalayas and Shivalik, Lower Himalayas. There are many states found in the Himalayan region. Hill stations like Shimla, Mussoorie, Nainital, Almora and Darjeeling are located in the Himalayan range. The region has thick forest consisting of pine, fir, deodar and oak trees. The lower slopes have orchards and tea plantations. Okay, देखिए जो चेन होती है माउंटेन्स की मतलब कि एक माउंटेन, दो माउंटेन, तीन माउंटेन जो रेगुलर होते हैं ना माउंटेन पर माउंटेन, एक माउंटेन के बाद एक माउंटेन होते हैं उसे हम रेंजेस बोलते हैं. ओके तो जो माउंटेन रेंजेस होते हैं सबसे ज़्यादा बड़ी जो रेंजेस होती हैं उसे वो है हिमालयन रेंजेस. ओके हिमालयन रेंजेस जो है वो वर्ल्ड्स की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है और उसे काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जैसे कि हिमाद्री ग्रेटर हिमालयस बोला गया है, हिमाचल मिडल और लेसर हिमालयस बोला गया है और शिवालिक लोअर हिमालयस बोला गया है. इसमें कई सारे स्टेट्स भी आ जाते हैं हिमालयन रीजन में जिन्हें हिल स्टेशंस बोला जाता है जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग. ओके ये जो हिमालयन रीजन्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे थिक फॉरेस्ट है जिसमें कई सारे ट्रीज पाए जाते हैं जैसे कि पाइन, फिर देवदार एंड ओक ट्रीज. ठीक है इनके जो लोअर स्लोप्स हैं वहाँ पे ऑर्किड्स और टी प्लांटेशंस पाई जाती हैं. पहाड़ी एंड हिंदी आर द टू मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन हिमाचल रीजन. द men wear धोती, कुर्ता एंड कैप्स. द women wear कुर्तास, घाघरा एंड चोली. In Kashmir, very special types of embroidered shawls and clothes are worn. Non-vegetarian food is cooked with spices like cardamom, cinnamon and cloves. They also eat pulses and cereal. Okay, देखिए यहाँ पे पहाड़ी और हिंदी भाषा बोली जाती है. यहाँ के जो men है वो धोती, कुर्ता, कैप पहनते हैं. Women जो है कुर्ता, घाघरा और
चोली पहनती हैं। कश्मीर में काफ़ी यूनिक टाइप के एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स पहने जाते हैं और उनके क्लोथ्स पर भी उसी टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है। नॉन वेजिटेरियन फूड कुक किया जाता है जिसमें स्पाइसेस जैसे कि कार्डमम, सिनेमन और क्लोव्स का यूज़ किया जाता है। पल्सेस और सीरियल्स भी खाए जाते हैं। Deserts. The driest part of land on earth is referred to as desert. These areas receive very little or no rainfall throughout the year. This covers a major part of the state of Rajasthan. This region is very dry and sandy. Dust storms are common here. The summer months are very hot and the winter months are very cold. Similarly, days are very hot and nights are colder. Not too many plants grow there due to scarcity of water. ओके देखिए, जो सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ पे उसे डेजर्ट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है और वाटर की स्कार्सिटी होती है। ओके, अब जो मेजर एरिया ऐसा इंडिया में है वो है राजस्थान। ओके, यहाँ पे ये काफ़ी ड्राई है और सैंडी है। डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं यहाँ पे, बहुत कॉमन है कि डस्ट के स्टॉर्म्स चले। ओके, और समर मंथ्स में ये बहुत हॉट और ड्राई रहता है। इसी तरीके से नाइट्स में जैसे जैसे ये डे में हॉट रहता है वैसे ही नाइट में उतना ही कोल्ड हो जाता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो नहीं करते क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी होती है। Plants that require little water such as cactus, kikar and babul grow in the desert regions. Farmers grow crops like jowar, bajra, wheat, barley and maize. Milk, buttermilk and butter are used to prepare Rajasthani foods. Dried lentils and beans obtained from native plants like sangiria and gram flour are commonly used in Rajasthan dishes. The most popular Rajasthani dishes are pakodi, gatte की सब्जी एंड दाल बाटी चूरमा. पीपल मोस्टली स्पीक मारवाड़ी एंड हिंदी. ओके देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर की स्कार्सिटी होती है, वाटर की कमी होती है, तो जिन प्लांट्स को कम पानी चाहिए होता है वो प्लांट्स यहाँ ग्रो होते हैं जैसे कि कैक्टस, कीकर और बबूल. ओके, यहाँ पे फार्मर्स जवार, बाजरा, वीट, बार्ले, मेज इस टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते हैं. मिल्क, बटर मिल्क और बटर जैसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है राजस्थानी फूड बनाने के लिए. ओके, और यहाँ पे बहुत कॉमन डिशेस, जो मोस्टली कॉमन डिशेस हैं, पॉपुलर डिशेस हैं यहाँ पे, वो हैं आपकी पकौड़ी, गट्टे की सब्ज़ी, दाल बाटी चूरमा. ओके, मारवाड़ी और हिंदी भाषा यहाँ पे बोली जाती है. प्लेट्यूज, an area of flat land located higher than the land around it is called a plateau or tableland. The region is rocky and uneven. The state of the Jharkhand lies on the Chota Nagpur Plateau. The state has many beautiful national parks and wildlife sanctuaries such as Hazaribagh National Park, Belta National Park and Jivik Udyan. The region is very rich in mineral resources like coal, iron and copper. Santhali, Kurukh and Hindi are the three main languages spoken in the people of this region. Okay, देखिए, प्लेट्यूज क्या होते हैं? ये लैंड से हायर लोकेटेड होते हैं, ये टेबल लैंड की तरह होते हैं. ओके, ये अनइवन तो होते हैं, रॉकी भी होते हैं. ये झारखंड स्टेट के आसपास जो है ये पड़ते हैं. यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल नेशनल पार्क्स भी हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं. हजारीबाग नेशनल पार्क है, बेटला नेशनल पार्क है, जीविका उद्यान है. ओके, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि कोल, आयरन, कॉपर. यहाँ पे 3 मेन लैंग्वेजेस बोली जाती है, संथली, कुरुख और हिंदी. ओके, द ट्राइबल मैन वियर अ वन पीस क्लॉथ कॉल्ड भगवन. The non-tribal men wear dhoti, kurta and pajama. Women wear saris and tribal women wear traditional clothes called panchi and parhan. Rice is the staple diet of this region. Some of the famous food items include litti chokha, satin and dhuska. देखिए, यहाँ पे जो ट्राइबल मैन है वो पहनते हैं भगवन. ओके, नॉन ट्राइबल मैन जो है वो धोती, कुर्ता और पजामा पहनते हैं. विमेन जो है वो साड़ीज़ पहनती है और ट्राइबल विमेन जो है वो यहाँ की जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है वो पहनती है जिसका नाम है पांची और परहान. ठीक है, राइस यहाँ का स्टेपल फूड है और यहाँ पे जो फेमस फूड है वो है लिट्टी चोखा, सातिन और धुस्का. द रीजन साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स till the southern tip of India comprises the Deccan Plateau. It is bounded by the Western Ghats in the west and the Eastern Ghats in the east. Okay, देखिए,
इंडिया का मैप अगर आपने देखा है तो वेस्टर्न घाट्स वेस्ट की तरफ पड़ते हैं और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट की तरफ पड़ते हैं और उनके बीचों बीच जो है वो डेक्कन प्लेट्यू पड़ता है। ओके, आइलैंड्स। An island is a piece of land surrounded by water. The Lakshadweep island lies in the Arabian Sea near the coast of the Kerala. Here, the tribal men wear a white or colored lungi and usually do not wear anything above the waist. The women wear a costume called kochi. This is a rectangular piece of unstitched cloth wrapped around like a skirt. Above this, they wear a full-sleeved jacket. A colorful scarf called thatam makes the pretty headgear. Fish and coconut not only form an important source of food in this island but have also become a source of livelihood for the people. One of the famous dance form is Kokali dance. देखिए, आइलैंड जो है वो होता है एक पीस ऑफ लैंड होती है जो कि वाटर से सराउंडेड होती है, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड है। ओके, ये केरला के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे पड़ता है, अरेबियन सी के पास में, ठीक है। यहाँ पे ट्राइबल मेन जो होते हैं वो वाइट कलर के लुंगी पहनते हैं और वेस्ट पे कुछ भी नहीं पहनते हैं यूजुअली, ठीक है। और विमेंस की जो कॉस्ट्यूम होती है उसको कोची बोला जाता है। एक रेक्टेंगुलर पीस का अनस्टिच्ड क्लॉथ होता है जो कि वो अपने वेस्ट के अराउंड रैप करती हैं और फुल स्लीव जैकेट पहनती हैं उसके ऊपर। एक कलरफुल स्कार्फ जिसको थतम बोला जाता है वो अपने हेड पर कवर करती हैं। यहाँ पे फिश और कोकोनट जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स नहीं है, बट इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको पीपल एज अ लिवलीहुड लेके चलते हैं। ओके, जो सबसे फेमस डांस है यहाँ पे उसका नाम है कोलकली डांस। ओके, सम अप, ट्रैवलिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वी नीड टू पे टू ट्रैवल. Money is available in two forms, coins and currency notes. The governor of RBI signs the currency notes. The flat piece of land where many rivers flow through it, it is termed as a plain. The driest part of land on Earth's surface is referred to as desert. The plateau is called a tableland. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।